کہ محرم الحرام کا انتہائی برسوں والا، عددوں والا، شانوں والا اگر یہ بات یوں کہی جائے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مسلم کو زندہ و تعبیدہ تا قیامت رکھنے والا مال جو ہے یہ محرم الحرام کا نہیں ہے۔ آپ سب بچوں کو میں دو باتیں جو اس بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا آپ کو پوری زندگی کے اندر اتنا بڑا نفع ہے، اتنے بڑے فائدے کی بات ہے، اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اگر ان دو باتوں پہ آپ لوگ عمل پیرا ہوں گے تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ پوری زندگی کے اندر آپ کسی بھی میدان میں بفضل تعالی ہار نہیں کھائیں گے، جیت ہی جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلی بات، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ جو لوگ، جو بچے حصول علم کے لیے اور بالخصوص دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مدارس کی جانب جاتے ہیں، مدارس میں جا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے جو ہیں وہ ان طلباء کے آگے ان کے نیچے اپنے پر بچاتے ہیں، اور پھر جس طرح ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ جہاد مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ربانی، ارشاد کرامی ہے کہ علم حاصل کرنا میری امت مسلمان کے جتنے بھی مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کے اوپر فرض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، ہاں تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بات سمجھے کہ یہ بڑی علم کی اہمیت ہے۔ اور پھر جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کامیابی اور کامرانی کی بات سمجھ گئی نا؟ اردو میں سمجھتے ہیں یا پنجابی میں بات کروں، پہاڑی میں کروں، وہ کشمیری تو مجھے آتی نہیں ہے، ایک دو فکروں کے علاوہ، وہ یہ جو کامیابی اور کامرانی کی بات ہے، یہ آپ لوگوں کے بڑی نصیب ہے، بڑے مقدر ہیں۔ میں آپ کے ان عالی شان مقدروں کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ جس ادارے کے اندر آئے ہیں، آپ کے استاد مکرم جو آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم سے راستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ان کا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ میرے ذاتی طور پہ بے حساب و کتاب ایسی باتیں ہوئی، لیکن ہمیشہ میرے سامنے یہ جو واقعہ میں آپ سے گزار کرنے جا رہا ہوں، اس جب سامنے آتا ہے تو پھر میرا ذہن، میری عقل، میری فکر جو ہے وہ بالکل محدود ہو جاتی ہے، اور میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، علی مقلا کے لخت جگر، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور نظر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ کے مابین کسی بات سے تلخی ہو گئی، شکر رنجی پیدا ہو گئی، تو حضرت عبداللہ نے پر ملا طور پر یہ بات کہی، حضرت امام حسن نے حضرت عبداللہ کو یہ بات کہی کہ جاؤ عبداللہ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟
तुम हमारे गुलाम हो। हजरत अब्दुल्ला ने बात सुनी, उनको ये बात बड़ी चुभी। रजा हसन, तुम इस बात को जानते हो कि मैं किस अजीम उम्मत हस्ती का फर्जंद अजमद हूँ। अमीरुल मोमिनीन खलीफाए दोयम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं बेटा हूँ, और आप ये क्या बात कह रहे हो। हजरत इमाम हसन ने कहा कि अब्दुल्ला, तुम भी मेरे गुलाम, तुम्हारे बाप जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफाए दोयम है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूरी नजर है, वो भी मेरे गुलाम है। बात के ऊपर हजरत अब्दुल्ला को बड़ा गुस्सा आया, भागते हुए गए। अमीरुल मोमिनीन अपने बाप की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, क्या आपा हुजूर, छोटी सी बात है मेरी और हजरत अब्दुल्ला के माबैन तलखी हो गई है। तो हजरत हसन ने ये बात कही कि जाओ अब्दुल्ला, तुम भी मेरे गुलाम, खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक जो है वो भी गुलाम है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अब्दुल्ला, क्या तुम सही कह रहे हो? ये मैं बिल्कुल अरब से ही कह रहा हूं। आपने फरमाया कि अगर तुम सही कह रहे हो, अगर तुम सही कह रहे हो तो फिर जाओ जाकर हसन को कहो, सैयदना हसन को कहो कि ये बात जो तुमने कही ये तहरीरी तौर पर कागज के ऊपर लिख कर वो दे दो। अब तो लोग अब्दुल्ला चले गए। इमाम हसन को कहा गया, हसन, क्या आपने जोश और बलबले में आकर ये बात कही, जब वाक्य हजम तुमने अंदर से कही। हजरत इमाम हसन ने कहा कि भाई, मैंने जो बात कही ये बिल्कुल बरहक बात है, दुरुस्त बात है, सही बात है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, क्या इमाम दादे, अगर ये हक को सच पे मबनी बात है तो तहरीरी तौर पर मुझे लिख कर दे दिया जाए। वो कहा लाओ कागज लाओ, और कागज के ऊपर ये तहरीर लिख दी और लिख कर कहा कि हजरत उमर फारूक खलीफा दोयम खलीफा वक्त भी मेरे गुलाम और तुम भी मेरे गुलाम। जब ये तहरीर अमीरुल मोमिनीन के पास लेकर गए, उन्होंने पढ़ा, अपने तमाम घर वालों को बुलाया और घर वालों को बुला करके वसीयत की कि जब मैं इस काल पानी से जाने लगूं तो मेरे कफन के अंदर ये कागज का टुकड़ा जो है आपने रखना है। उनको ये बात तशवीश हुई। उन्होंने कहा, वो हुजूर, इसमें क्या कार फरमा है कि आप इस तहरीर को, इस कागज के टुकड़े को आपने कफन के अंदर रखने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने ये बात जवाब कही जो बड़ी समझने की बात की है कि उमर फारूक उनका बेटा, ये मेरे गुलाम है, और इससे बढ़कर मेरे लिए एजाज वाली सन्नत जो है वो नहीं हो सकती। तो आप शायद कम उम्र में इस बात को न समझ पा रहे हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये आपके सरपरस्त, आपके नाज़िम, आपके नाज़िम जनाब सैयद खलील हुसैन साहब, सैयद शकील हुसैन शाह साहब, और आपके उस्तादी मुकर्रम जनाब सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब का तो बुला लिया। ये खुदा का एक खास आप लोगों के ऊपर करम है, इनाम है, और बहुत बड़ी बात है कि इनकी सरपरस्ती और इनकी जनाब ये आपके साथ है, ये बड़े एजाज की बात है। इसलिए एक आखिरी बात सिमर में मैं आपके गुलगुजार की इजाजत से करना चाह रहा हूँ कि ये बात अभी आप कम उम्र है, शायद इतने इल्म में भी इजाफा नहीं, ये मुकल्लद और गैर मुकल्लद की बात होती है। हमारा मसलक जो सच्चा मसलक है ये सुन्नी है। हमारे इमाम है हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखिए, ये बड़ी पते की बात है, मैं एक इशारा दे रहा हूँ वो तुमसे भी। उन्होंने कहा, वो जब फारूक उनका असील हुए, इल्म से फारूक हुए, वो बहुत बड़े इमाम थे, मामूली इमाम न थे। तो लोगों ने, दोस्तों ने, सभी ने ये मशवरा दिया कि हुजूर आप क्या करते, आप ऐसे करें कि आप अपना मदरसा कायम करें और ये जो
जेवर तालीम है, किसी लोगों को आरास्ता और पैरास्ता करे, तो आपने फरमाया कि मेरा अंदर जो है इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपने काज़ी मुकर्रम की जिंदगी के अंदर उनकी मौजूदगी में मैं कोई और मदरसा खोलूँ। ये मेरा अंदर जो है कि इसकी इजाजत नहीं दे रहा। फिर सारी जिंदगी इमाम अबू हनीफा ने अभी अपने काज़ी मुकर्रम के घर की जानत, उनके मदरसे की जानत बहुत बार से नहीं देखे। ये बड़ी उदास की बात है। इसलिए मैं आपसे ये गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप अपने वक्त को ज़ाया मत करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनके हुक्म की तामील करें और हुसूल इल्म में इस तरह मुनाफिक हो जाए कि जिस तरह आपको अल्लाह ने फ़कत इसलिए पैदा किया कि आप इस मदरसे के अंदर रहकर ज़ेवर तालीम से मुकम्मल तौर पर रास्ता होकर फिर आप जब बड़े होंगे आने वाली नस्लों को दीन मदीन की जो है वो तालीम देंगे और लोगों को हिदायत याफ्ता बनाएंगे और लोगों को शऊर और तदब्बर, फहम और फरासत जो है वो भी आप लोग भी अदा करेंगे। या आना ये किसी तरह वक्त का ज़ाया करना इससे बढ़कर और आपकी बात की नहीं हो सकती। आप जितने भी तलबा यहाँ तशरीफ फरमा हो, अगर किसी को बात मेरी समझ आई है तो वो वैसे नहीं अंदर से सच्ची करें कि वो हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि मेरी बात जो है वो आपने न सिर्फ सुनी है बल्कि आपके अंदर जो है वो शिकायत की है। ऐसा कीजिए हुक्म की तामील करते हुए ऐसे ही सिमिलर मैं इनसे गुजारिश कर रहा था कि हमदे ताला के इमाम आली मुकाम के मर्तबे के मुताबिक से शायद से बात न कर सकूं, ताम मुख्तसर सी एक दो रुबाइयाँ जो है वो सुधार करूँगा, क्योंकि ये वक्त आपका शायद कलील है, इतना लंबा नहीं। लेकिन अगर शाह साहब की इजाज़त दें तो 2-4 मिनट के अंदर में इमाम आली मुकाम के हवाला से भी बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये मशरूत है, मशरूत की मानी है कि आप अगर तवज्जो से इस बात को सुनेंगे और सुनने के बाद आप इसके ऊपर अत्तुल मकतूब पूरी कोशिश करेंगे, इसके ऊपर अमल पैरा होगा। यह मेरी बात कि दीन खालिद को मर्ज दिया सहारा किसने, दीन खालिद को दिया मर्ज सहारा किसने, मर्ज जिंदा किया इस्लाम दोबारा किसने, दीन खालिद को दिया सहारा किसने, मर्ज जिंदा किया इस्लाम दोबारा किसने, दे के सर जुल्मत कर दिया किनारा किसने, दे के सर जुल्मत कर दिया किनारा किसने, मौत तो मारती है पर मौत को मारा किसने, रह गई मौत पुनः तक और ये बकाह तक पहुंचा, रह गई मौत पुनः तक और ये बकाह तक पहुंचा, मौत को मारकर शब्बीर खुदा तक पहुंचा, मौत को मारकर शब्बीर खुदा तक पहुंचा। मैं समझता हूँ कि ये रुबाई जिसने भी लिखी उसने कमाल कर दिया और कलम तोड़ के रख दिया। दस्त बला को अर्ज का जीना बना दिया, दस्त बला को अर्ज का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, कंकर को जो छू लिया उसे दुर बना दिया, आसी जो आए घर पे उसे गुर बना दिया।